Now, how did this journey started? Matlab, you were into customization. My grandfather was the one who got into automobile for the first time. So, what kind of a marketing which was done? It was just word of mouth marketing की और आने शुरू हो गए कि इन्हीं से कराओ. I knew I had to do something different to get the word out कि हाँ भी I'm working on a 4x4 vehicle. सबसे टेढ़ा काम क्या किया है? Customization का ये पहला रूल है कि it will not be a finished product in the first go. अब थार की तो टेस्टिंग यू टुक इट एज एक्सपेडिशन टेस्टिंग की कि प्रोडक्ट ठीक लगा है कि नहीं. ये vehicles में देखो पहले तो मैं अब customizations कम लेता हूँ. So, as per government law, these modifications are not ideally allowed on the car. ये तो पहली आप चीज़ समझ लो. ठीक बाय है. लॉ आप अपनी गाड़ी में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. कुछ Okay. भी नहीं. छोटी से छोटी चीज़ भी सोच लो वो भी नहीं आप कर सकते. EVs जो हैं 4x4 होंगी ना, which will be much more powerful than these motor vehicles. स्पोर्ट्स कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल हाँ, की रेस हाँ, हो रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल इज परफॉर्मिंग मच Much बेटर. better. So today we have with us Mr. Taran Bimra, जिनको नॉर्मली लोग बिमरा 4x4 से ज़्यादा जानते हैं. ट्रू. और आप बहुत सारे मोटर स्पोर्ट्स लवर के लिए वो काम कर रहे हैं जो एक्चुअली कंपनीज भी नहीं कर रही हैं. You could I can say that? हाँ. तो ऐसा क्या आपने ढूंढ लिया जो कंपनीज भी नहीं ढूंढ पाई हैं while they are taking out their product and you are building your stuff on their product? So with automobile, the case has always been कि companies are targeting the mass market, which is correct on their part. अब उस mass market के अंदर एक niche market भी है, which you could call the automobile enthusiast. वो motor sports के is part of that. So what Bimra 4x4 does is कि उस target market को capture कर रही है. एडवेंचर लवर्स को. Adventure lovers. So basically the kind of customers we would get is people who are into expeditions. ठीक है. People who would be into off-roading and general शौकीन बंदे मतलब जिनको they would want a secondary or not their primary vehicle but they would want a vehicle which is capable of doing things which your regular vehicle would not be capable of. ओके. ठीक है. तो 4x4 में लेट मी बी क्लियर. आप इस मोटर स्पोर्ट्स में देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज. रैलिंग बीइंग वन, ऑफ रोडिंग बीइंग अ डिफरेंट कैटेगरी. हमारा मेजर जो फोकस है 4x4 में ऑफ रोडिंग एंड एक्सपीडिशन से रिलेटेड है. ओके. Not into rallying. We get rally customers. It's not like we don't, but we don't specialize in that. I won't get rally specific vehicles और कोई इसको rally ready कर दो. मेरे पास वो आ जाएंगे कस्टमर्स आ जाएंगे कि हाँ भी हमें FIA अप्रूव सीमलेस पाइप के रोल केजेस वगैरह बनाने और फैब्रिकेशन वगैरह करनी है. दैट वी आर एबल टू डू. वी डू दैट. अंडर बॉडी प्रोटेक्शन चाहिए या ये सो एंड सो कुछ फैब्रिकेट करना है. बट आर कोर ऑडियंस वुड बी जो 4x4 के कस्टमर्स हो जिनको ऑफ रोडिंग करनी है वीकेंड्स पे. और दोज पीपल हु वुड बी looking to take the vehicles to the hills expeditions वगैरह के लिए या as a weekend getaway का एक्सपेडिंग. या कैंपिंग हो गया. कैंपिंग हो गया. We'll further discuss this. मतलब बहुत सारे इसमें अलग अलग कैटेगरीज आती हैं. I'm just giving you a general overview. हाँ. Are you a customization company or are you a product company? We started as a customization company. I would still say we are a customization company. We still do that. I think after COVID or maybe even before that, we started shifting to making general products जो which are fit on. What I saw was कि आप so how do you learn? आप मार्केट ट्रेंड्स देखते हो, बाहर के देखते हो कि हाँ भाई US की मार्केट कैसे इवॉल्व हुई, ऑस्ट्रेलिया की कैसे हुई. वहाँ पे 4x4 मार्केट्स हैव इवॉल्व्ड देम मच अहेड ऑफ अस अभी. Absolutely. ठीक है. All of these bigger companies they started as customization. Then they made standardized products जो कहीं पे भी शिप करे जा सके वर्ल्ड ओवर एंड वहाँ पे फिट हो सके. So that's the line we are also going into. We have already gone into pretty much. तो उसकी वजह से we have 40-50 dealers pan India जो distributors who are on a daily basis doing multiple vehicles at their workshops. In fact वो further भी आगे दे रहे हैं. So even tier 2, tier 3 cities में भी हमारा सामान मिल जाएगा. तो all that happened because हमने यहाँ पे standardized products bolt on करने शुरू कर दिए. So the customization aspect is still there. कि हमारे पास कस्टमर लेकर आएगा गाड़ी. Vehicle will be with us for
few weeks, few days, few months, depending on the project. ठीक है, but I would say 95% of our business is the products we design, develop, do R&D in-house. Then after that, it's tested and it's a success. Then we start mass producing it and sending it over to our dealers. Okay. Now, how did this journey started? मतलब you were into customization. You are the one who started this because I know कि you are the second generation into the family. तो So initially, in fact, I would say I'm the third generation. okay. इसलिए my grandfather was the one who got into automobile for the first time. This would be, I think, 50s. Back in 50s, had a workshop in Connaught Place. Okay. Not exactly like this, but something to do with automobile. From what I've known from my father. Father took the business forward. Got into all the other SUVs. Generally उस टाइम पे business ज़्यादा focus था interiors, customization related था. Then he got into this mass production भी, जिसमें उस टाइम पे roof carriers चलते थे, guards बनते थे, side steps बिल्कुल, बनते थे. बिल्कुल. अब तो चलो guards वगैरह भी ban हो चुके हैं, but उस टाइम पे that was the market. I'm talking about 80s, 90s, early 2000s, ये टाइम की बात है. Dad got into customization. Rally circuit में he was doing pretty well. उसमें उस टाइम पे rallies ही चलती थी. 4x4 का इतना concept नहीं था. रैलीज में चाहिए भी नहीं होता 4x4. हाँ, so 4 rallies का ज़्यादा concept है because Raid the Himalayas is उस टाइम से काफ़ी टाइम से चल रही है, and there were other rallies as well. So ये सब कुछ चल रहा था. Then I got into the business because technically I'm still in the automobile field. So I got into it by default कि family business चल रहा है. लेकिन I chose the 4x4 business because जब when I entered in 2009-10, उस टाइम बाद महिंद्रा थार आई थी, CRD. ठीक है, that महिंद्रा थार CRD was one vehicle. I'm forgetting the customer's name. He got the vehicle to us for customization. And when we worked on that vehicle, we thought, I personally thought कि it could be a game changer. I would want to get into this in particular rather than your regular गाड़ियों की accessories. I would want to get into this. Then got my own Thar. Okay. That was the first time when I realized how the whole process works. I bought the vehicle, opened it up completely, did all the R&D. ये जो बना सकता हूँ, I started working on the vehicle, be it bumpers, underbody, hard tops. That was the first hard top I made. अच्छा. उससे पहले भी हार्ड टॉप्स होते थे महिंद्रा वगैरह पुरानी वालों के, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट डिजाइन हार्ड टॉप आई मेड इन फ्रंट ऑफ मी. वो मेरी पूरी टीम लगी हुई थी, बी इट द डिजाइन पार्ट, बी इट द टेक्निकल पार्ट. सो आई वाज लर्निंग. मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैंने MBA किया हुआ है. सो वेरी न्यू फॉर मी. ठीक है, विल कम टू दैट लेटर. So that's when my interest in 4x4 started growing. So मैंने कहा Thar is one vehicle which I would love to work in, and I made couple of products, customization, and that was a hit for us. So then Bimbra 4x4 came into existence. पहले Bimbra थी, Bimbra Industries थी. Bimbra 4x4 came into existence, and every year what I saw was पहले तो एक ही प्लेटफॉर्म था Thar का. थार में द वर्क केप्ट ऑन ग्रोइंग, मतलब परसेंटेज जो 4x4 का था दैट केप्ट ऑन ग्रोइंग एवरी ईयर. इवेंचुअली 7-8 years बैक वो सिर्फ 4x4 ही बन गया. द होल मार्केट बिम्ब्रा इंडस्ट्री हो गया. हाँ, वो 4x4 का ही हमारा पूरा बिजनेस शिफ्ट हो गया. स्टार्टेड विद थार CRD. ठीक है, 2010s के बाद. Then I would say कि हाँ भी बिम्ब्रा जो है थार CRD was that platform for us which got Bimbra 4x4 into existence. Okay. Yeah. So when you got this car, you delivered it. So what kind of a marketing which was done? It was just word of mouth marketing कि और आने शुरू हो गए कि इन्हीं से कराओ. And secondly, what were you doing different कि मार्केट में और कोई नहीं कर पा रहा था, because बहुत सारे कस्टमाइजर्स बैठे हैं. Now जो हमारा that other thing I was talking about कि I'm a marketing student. MBA जो चलो उसके बाद किया, when I was even working, तो I was doing my MBA. But marketing का मेरे को पहले से ही passion था. I knew I had to do something different to get the word out कि हाँ भी I'm working on a 4x4 vehicle. Okay. It was not a mass market vehicle. Thar CRD की sales इतनी नहीं थी. बहुत ज़्यादा नहीं थी starting में. Use the power of internet, team BHP, अलग-अलग platforms, social media, which we weren't doing पहले. तो social media ये वो वगैरह everything I could think of मैंने वहाँ पे गाड़ी को promote किया, publish करा.
दैट्स व्हाट वहाँ से क्वेरीज जनरेट होनी शुरू हुई. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये 2012 13 10-12 साल हो गए इस बात को भी ना. नाउ द मार्केट हैज मैच्योर्ड क्वाइट अ लॉट. मार्केटिंग बहुत और ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है ना. बट ये उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे दिस वर्क फॉर अस. पीपल ऑलरेडी न्यू बिम्रा, दे डिडंट न्यू कि बिम्रा अब 4x4 स्पेसिफिक चीजें भी करता है. बट आफ्टर वी स्टार्टेड डूइंग द थार, फिर वो 4x4 का लोगों को पता चल गया कि हाँ भी दे स्पेशलाइज इन दिस. हार्ड टॉप्स बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स बिकॉज इट्स अ बिग प्रोडक्ट. हर कोई नहीं बना सकता. वी हैड द इंफ्रास्ट्रक्चर. All we had to do was develop the product, develop a decent product, and we kept on evolving on that. तो अभी थार CRD को भी बंद हुए इतने साल हो गए, लेकिन by the end of its life cycle, we had developed 4 different designs. वो अभी भी चल रहे हैं, अभी भी we keep on getting queries, but we kept on improving on it. That we still follow this philosophy, कि keep on improving on the product. So that's how we got the word out. So when you say that you keep improving on it, is it the requirement from the market? या आपका अपना है कि दैट वी नीड न्यू प्रोडक्ट टू बी आउट इन द मार्केट कि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़े? बोथ. फर्स्ट इंडिकेशन यू वुड गेट इज, बेस्ट इंडिकेशन इज मार्केट क्या बोल रही है. ओपन योर ईयर्स, सुनो. एंड फॉर अस इट्स नॉट जस्ट कि एक कस्टमर आके क्या बोल रहा है, दैट्स द बेस्ट इंडिकेशन. बट हमारे डीलर्स क्या बोल रहे हैं, व्हाट्स द वर्ड ऑन द इंटरनेट, क्या चीज़ की डिमांड आ रही है. सो वट एवर चैनल यू आर एबल टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, ढूंढो कि ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन मांग रही, कस्टमर मांग क्या रहा है, इस गाड़ी में कमी क्या है. नहीं तो आप ढूंढते कैसे हो, कहाँ ढूंढते हो? अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, मैंने कहा ना कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स वगैरह. इवन आप फॉरम्स वगैरह पे चले जाओ कि लेट्स से अ व्हीकल लाइक जिमनी गेट्स लॉन्च्ड, इस गाड़ी में कमी क्या है, व्हाट आर पीपल लुकिंग ऑनलाइन, व्हाट आर दे सर्चिंग ऑनलाइन. आई गेट माय टीम्स टू सर्च कि कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं. अच्छा, एज माइन्यूट एज दैट कि हाँ भी कीवर्ड्स, अगर थार के साथ कीवर्ड्स कौन से सर्च हो रहे हैं, पता तो चले कि व्हाट आर पीपल लुकिंग एट. तो उसके बेसिस पे देन वी स्टार्ट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स. दैट्स इंडिकेशन 1. तो मतलब कि फॉर अस कि ये प्रोडक्ट को पहले डेवलप करना है. देन ऑफ कोर्स आई हैव टू बाय ऑल द व्हीकल्स, आई यूज देम माई सेल्फ. तो मेरे को अगर खुद वो व्हीकल को यूज़ करना, मुझे सबसे पहले तो अपनी कमियाँ खुद भी पता चल जाएगी ना. वेरी सिंपल. थार वो जो अभी 2020 में आई, आर्मरेस्ट नहीं है. अब नहीं भी तो दे दिया, उसमें आर्मरेस्ट नहीं है. मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं हाथ रखने की कोई जगह नहीं है. बहुत छोटी सी आइटम है. डेवलप द आर्मरेस्ट. ऑटोमेटिक व्हीकल्स में मेरा फ्रेंड, मेरे पास मैनुअल थी, तो मेरा फ्रेंड एक आया, गुड कस्टमर, वेरी ओल्ड फ्रेंड. उसने कहा ऑटोमेटिक में एक डेड पेडल होना चाहिए, है नहीं इसमें जगह. वी डेवलप दैट. छोटी सी आइटम है, एक पैर रखने के लिए रेस्ट जगह चाहिए, डेड पेडल वो नहीं था ऑटोमेटिक थार में, डेवलप कर दिया. अच्छा, अ स्मॉल प्रोडक्ट लाइक एक कोई बंदे तो ऐसे पैर खोल के ऐसे चलाएंगे वगैरह, उनका पैर टच होता है डैशबोर्ड पे. थार में जगह कम है, तो लेफ्ट वाला पैर डैशबोर्ड पे टच होता है, तो कहता था यार तंग यहाँ हर्ट करता है कि टच होता रहता है. बड़ा सिंपल से इसका सोल्यूशन मैंने ऐसे निकाल दिया कि हाँ भी वो एक पार्ट बना दिया उसी शेप का, और उसमें पैडिंग ऐड कर दी, वो पेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो दैट बिकेम अ प्रोडक्ट. कोई प्रोडक्ट ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन वी डेवलप दैट इनटू मास प्रोडक्ट, और आज की डेट में एग्जिस्ट करता है. तो ये व्हेन यू टेस्ट द व्हीकल योरसेल्फ, यू ड्राइव इट योरसेल्फ, आपको पता चलेगा ये कमी है. दैट्स द सेकंड वे यू वुड वांट कि ये प्रोडक्ट पहले डेवलप करना है. फर्स्ट इज मार्केट में आप सुनो कि हाँ भी क्या कस्टमर मांग क्या रहा है, हाँ तकलीफें क्या है, क्या प्रॉब्लम है. मतलब यू कांट, मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से सोच पाऊंगा. यार मेरे को तो डेली ड्राइव की तरह मैं गाड़ी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा माइंडसेट उतना ही चलेगा कि डेली ड्राइव में तंग कर रही है नहीं कर रही. लेकिन समवन हु इज टेकिंग दैट व्हीकल फॉर एक्सपीडिशंस, ही वुड नो बेटर कि एक्सपीडिशन में कहाँ कमी है. कोई उसके साथ ऑफ रोड कर रहा है, ठीक है, वो कहेगा यार अप्रोच एंगल कम है, रेडिएटर थार में ये था, लास्ट थार का इशू भी था, अप्रोच एंगल रेडिएटर ज्यादा नीचे था, वो बार बार टूट रहे थे स्टार्टिंग में. वो तो बाद में कंपनी ने भी फिर एक प्लेट बना दी. लेकिन वी वर गेटिंग क्वेरीज कि यार आगे की स्किड प्लेट को मेटल करो, तो हमने एल्यूमिनियम एंड माइल्ड स्टील में बना दिया, वो रेडिएटर्स प्रोटेक्ट होने लगे. सो ये कस्टमर से फीडबैक आया, क्योंकि मैं तो उस टाइम तक ऑफ रोड नहीं कर रहा था, मैं तो डेली यूज के लिए गाड़ी यूज कर रहा था. सो यू आर गिविंग सम इंटरेस्टिंग फैक्ट. सो मैंने एक किसी को पॉडकास्ट किया था हु इज इनटू कार डिजाइनिंग, आशीष चौधरी. So he said that कि before going out nowadays for a new vehicle design, they study the market, they study the requirement. ये इतने छोटे छोटे यूजर ड्रिवन माइन्यूट चीज़ें हैं what you're talking about. So you say that वो लोगों ने इस लेवल पे स्टडी नहीं किया है, so they are giving what they want to give, they are not studying what people want to take from them, और they are not actually जब उसके वेरिएंट्स आते हैं, जैसे आज लॉन्च हुई तो उसके कस्टमाइज्ड
वर्जन 2 वर्जन 3 आते रहते हैं, सो व्हाई डोंट दे ऐड इनटू देयर व्हीकल द स्मॉल एलिमेंट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? यू टॉकिंग अबाउट कार मैन्युफैक्चरर्स? Thar manufacturers, Isuzu manufacturers, car manufacturers, car manufacturers basically as a whole. Again, मैंने एक आपको चीज़ बोली थी, what these manufacturers do, it's they're trying to appeal to the entire market. ये एक सेगमेंट को अपील नहीं कर रहे, प्लस देयर आर अदर कंसिडरेशंस इनटू, यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द टूलिंग कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किस रेंज में रखनी है गाड़ी, व्हाट. अच्छा, मैं मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, I'll just interrupt a small thing. You said there are two elements. So जो पैडिंग आपने लेग पैडिंग बताई या आर्मरेस्ट बताया, उसका उस 4x4 से कोई रिलेशन नहीं है. हाँ हाँ. इट्स जस्ट फॉर द नॉर्मल यूज ऑफ द व्हीकल. तो वो अगर बनेगी और लगेगी तो सब में लगेगी, किसी 4x4 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जनरल वाले की भी सेम रिक्वायरमेंट होगी. राइट राइट. तो टू दैट लेवल वो एक पैडिंग लगाने के, आई डोंट नो द कॉस्ट, बट इतना नहीं बढ़ेगा. जो 15 लाख की गाड़ी ले रहा है तो 15.25 भी दे देगा. So from what I've understood is these companies learn. It's not like they don't learn. मैं आपको महिंद्रा का एग्जांपल देता हूँ. अभी थार रॉक्स आई, बिल्कुल. थार ओल्ड थार में कुछ 4-5 कमियां बताता हूँ. देयर वाज नो ग्रैब हैंडल, हम बनाते थे, थार रॉक्स में दे दिया उन्होंने. ठीक है. चढ़ने के लिए हाइट ज़्यादा है ना, एसयूवी है. देयर वाज नो आर्मरेस्ट, हमने बात करी, आर्मरेस्ट दे दिया. ठीक है. स्टोरेज की डैशबोर्ड में कमी थी, बहुत छोटा सा बनाते हैं नाम के लिए, उसको बड़ा कर दिया. अच्छा. ठीक है. ये पैडिंग का भी मैं अगर बोलूँगा, आई हैवंट ड्रिवन द व्हीकल मच येट, बट आई वुड कम टू अंडरस्टैंड कि हाँ, या तो उस पर कुछ कुशनिंग ऐड कर दी, कि नहीं भी करी हुई तो शायद डैशबोर्ड को चौड़ा कर दिया. ठीक है. सो दीज कंपनीज डू लर्न. इट्स नॉट लाइक दे डोंट, बट फॉर एनी बिग मैन्युफैक्चर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लुक इनटू. सिर्फ उनको गाड़ी भी टाइमलाइन पे लॉन्च करनी है, हर एस्पेक्ट को शायद वो ना देख सके, वो मेजर एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि हाँ भी ये हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं. हमारे पास ये इंजन बन गया, दैट्स अ मेजर एसेट. हमारी बॉडी ये बन गई, ठीक है. हमारा डैशबोर्ड ये बन गया. लेकिन जो बहुत सारे छोटे फिट्स एंड ये जो कमियां अगर छोटी मोटी बाद में जो पता चलती है, दीज कैन बी ओनली आइडेंटिफाइड जब गाड़ी लॉन्च हो जाए और मासेस के पास जाए. ये जनरली दैट्स द रूल, कि जब तक वो गाड़ी मासेस के पास नहीं जाएगी, एक कंपनी भी एक लेवल तक सोच पाएगी ना कि अभी ये चीज़ें गाड़ियों में कमी हो सकती है. आप यू हैव योर so most of these companies what they do is of course they do test runs for a good period of time, अलग अलग डेमोग्राफिक को भी गाड़ी चलाते वगैरह, लेकिन still there is a limitation ना. 1000 बंदों को चला लेंगे, 2000 बंदे चला लेंगे गाड़ी, बट द फीडबैक वोंट बी कि जब 20,000 बंदों के पास वो गाड़ी चले जाए मार्केट में. So I think but companies do learn. It's not like they don't. Okay. So we were talking about Thar, but ऐसे ही Isuzu है, Jimny है. So आज Thar Rocks launch हुई है. So you said that कि you take reviews from the online things. अब वो 20,000 लोगों तक तो पहुंची ही नहीं है, अभी वो भी 1000 पे ही पहुंची है. So how do you plan the vehicle aftermarket things for the product like Rocks? So Rocks का मेरी strategy बड़ी simple होगी. Of course I'll have to buy the vehicle. मेरी गाड़ी अभी तक नहीं आई है. महिंद्रा, if you're listening, आपको AX7 मॉडल मार्केट में कम है, जो lot of people are looking at, मतलब the top model कम है, and especially people in NCR, they are looking at petrol variants now. डीजल से सब डर चुके हैं. ठीक है. So petrol variants, this is the आपने what Mahindra has done is with the Rocks, बहुत सारे variants बना दिए, बहुत सारे हैं. ठीक है. अब दे डोंट नो कि मार्केट में डिमांड की आएगी, तो जो वेरिएंट की डिमांड कम है वो तो मार्केट में अभी पड़ा है. आप अभी शोरूम पे चले जाओ, मिल जाएगा आपको, वो MX5 मिल जाएगा, डीजल वगैरह, ये वेरिएंट्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर किसी जो वेरिएंट एक्चुअल में डिमांड है बेस्ड ऑन द सिटी, दिल्ली NCR में डीजल अब इट्स लाइक ऑब्सोलीट नाउ, मोर और लेस. सी आई वोंट से ऑब्सोलीट, लेकिन मैं फॉर अ पर्सन लाइक मी हु वुड वांट टू कीप व्हीकल फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मुझे अपनी Isuzu बहुत प्यारी है, लेकिन मेरे को निकालनी पड़ रही है, 9th ईयर पे आ गई है. ठीक है. आई गॉट इट फॉर 16 लाख समथिंग, अब पिकअप ट्रक फॉर 16 लाख, अब तो चलो 30 लाख प्लस कर दी है, लेकिन फॉर दैट इट्स वैल्यू फॉर मनी व्हीकल. मैं बेचना नहीं चाहता हूँ. और 10 साल में कुछ नहीं होता इनके इंजन को, कि मेरी ज़्यादा चली भी नहीं है, 60-70,000 किलोमीटर डन, तो मैं क्यों बेचूं, बट आई हैव टू सेल इट. सो कमिंग टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, रॉक्स, वंस द व्हीकल कम्स टू मी, हमारा सबसे पहले काम होगा, आई विल बी टेस्ट ड्राइविंग द व्हीकल, चेकिंग इट इन डिफरेंट टेरेन्स. सो मेरा जो सब कोर पैशन है ट्रैवलिंग, वो उस पर पूरा हो जाएगा. सो आई विल टेक द व्हीकल आउट, ट्रैवल विद इट, पहाड़ों पे जाना, ये ले स्पीति कर लेना एक बार वगैरह, सारी कमियां पता चल जाएंगी, एंड कीप ऑन नोटिंग इट डाउन. सिमिलरली कुछ वो ऑफ रोडिंग के इवेंट्स कर लिए, उसमें पता चल गया क्या कमी है.
the next best source of information will be I'll keep on asking in the circuit, same जो off-roading circuit है या people who I know who have the vehicle कि क्या चीज़ों में आपको लग रहा है shortfalls है, ठीक है, that's the other source of information कि ये चीज़ें बनानी है अभी एंड बट बिफोर दिस ये सारा बात तो तब है जब गाड़ी मेरे पास आ जाएगी. इससे पहला एक और स्टेप होता है जो लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स लाइक अस डू. वी गेट अ होल्ड ऑफ द व्हीकल आइदर इन शोरूम और समवेयर विद द कंपनी, वी स्कैन द होल व्हीकल. ये ऑलरेडी हो चुका है. अच्छा. द होल व्हीकल हैज बीन स्कैन्ड. जो पार्ट्स हमें बनाने हैं वो कैड वगैरह पे डिजाइन बन चुके हैं. ओके. ठीक है. तो हमने इसकी वो थार की फ्रंट ग्रिल वो रैंगलर स्टाइल बनाई थी विच बिकेम वेरी पॉपुलर. आज के डेट में सारी थार्स पे कॉपी होके वो लग भी रही है. तो वी वर द वंस हु डिजाइंड इट. ठीक है. तो अब हम इसकी भी नई ग्रिल्स बनाएंगे 3-4 मॉडल्स. इसका बम्पर्स भी इसके बनेंगे, रूफ रैक्स भी इसके बनेंगे. लॉट ऑफ एक्सेसरीज विल बी डेवलप्ड. ऑलरेडी हो भी चुकी हैं बिकॉज द स्कैनिंग पार्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ 3 months बैक ओनली. तो वो सब कुछ हो रहा है बट आई वुड स्टिल नीड द व्हीकल विद मी ताकि मैं हर चीज़ उस पर टेस्ट कर सकूँ. तो एक बार मेरे पास व्हीकल आ गई, आई विल चेक द फिट एंड फिनिश एंड दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. मैं 6 months का प्रोसेस बोलता हूँ. हर बार ये गाड़ी आती है. फॉर द नेक्स्ट 6 months वी मेक श्योर कि उसके 40-50 प्रोडक्ट मार्केट में निकाल दें एंड देन उसके बाद दैट्स एन एवरेज ऑफ 5-6 प्रोडक्ट्स अ मंथ हम निकालते रहेंगे. 10 प्रोडक्ट तक निकाल देंगे कुछ मंथ्स वगैरह में, छोटे बड़े वगैरह. उसके बाद थ्रू आउट द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हर मंथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आते रहेंगे लेकिन वो फीडबैक आएगा कंज्यूमर से. ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ मार्केट कंज्यूमर्स एंड ऑफ कोर्स आवर डीलर्स कि यहाँ पे इस सर्टेन स्टेट में इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा आ रही है. गॉट इट. अब थार में अर्ली थार में जगह कम थी तो एक बड़ी और डिमांड अलग आई थी कि पीछे की इफ पीपल आर नॉट यूजिंग द रियर सीट तो वो सीट फोल्ड करके आगे कर दो और पीछे स्टोरेज की जगह बन जाए. तो दैट इज समथिंग व्हिच वी डेवलप. 2-seater बन जाए. अब इस थार में वो दिक्कत नहीं है. देयर इज स्पेस एट द बैक लेकिन पीछे कम स्पेस है. अब हाउ डू वी यूज दैट स्पेस? तो मेरे दिमाग में वो भी चीज़ें आ रही हैं कि स्पेस पे यार पीपल हु वांट टू गो ऑन एक्सपेडिशन आप एक रेफ्रिजरेटर का स्टैंड बना देते हैं विच रेफ्रिजरेटर पुल्स आउट. तो पीछे लास्ट रो के बाद जगह है और आइदर वी मेक अ कंपार्टमेंट वगैरह जिसमें अलग अलग चीज़ें रखी जा सके. सो we'll keep on gathering feedback from the customers or the users. but मैं खुद अपनी गाड़ी आएगी मेरी तो मेरे को सबसे बेस्ट उस पर समझ आएगा क्या बनाना है. हाँ, उसको तोड़ फोड़ के जो करना करेंगे. बहुत सारा थार के बारे में हो गया. लेट्स गो टू Isuzu एंड जिमनी. वी हैव Isuzu, जिमनी, हाइलेक्स. देन जो हम इससे पहले बात कर रहे थे वी हैव अदर 4x4 व्हीकल्स जो इतनी पॉपुलर नहीं है. गुरखा वगैरह भी है. सो आप बताओ व्हाट डू यू वांट टू डिस्कस? So which one is close to your heart? अभी रिसेंटली आई हैव बीन लविंग द जिमनी. मीडिया में सबको मार्केट में है कि जिमनी इज अ फेल्ड प्रोडक्ट. द नंबर्स आर स्टिल नॉट जस्टिफाइड. जो अभी एक्चुअल नंबर्स कर रही है आई हैड होप उससे बेटर करेगी. दैट बीइंग सेड इट इज़ अ वेरी केपेबल व्हीकल. यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आई थिंक मारुति का ब्लंडर हुआ इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग. Exactly. From what I have heard, I don't know if it's true. Don't sue me, Maruti. they increased the pricing 2 days before the reveal of the price by 2 lakhs. इसलिए कि उनको लगा बुकिंग बहुत ज़्यादा आ गई है. Enthusiasts सारे आर आफ्टर द व्हीकल. They didn't realize कि बुकिंग्स कैंसिल भी हो जाती है ना प्राइसेस के जैसा प्राइस होएगा. तो बुकिंग ज़्यादा आ गई थी मारुति को इनिशियली. They increased the price by 2 lakhs. तो जितने भी अमाउंट की होनी थी उससे 2 दिन पहले बढ़ा दिए. एंड देन ऑफ कोर्स बुकिंग्स भी गिर गई एंड नंबर्स सबको दिख ही रहे हैं. उसके बाद डिस्काउंट जब भी करते हैं जिमनी में तो नंबर्स बढ़ जाते हैं. आई नो फॉर अ फैक्ट कि जिमनी जो यहाँ पे बना रहे हैं जो एक्सपोर्ट हो रही है दैट्स डूइंग वेल. बाहर जिमनी के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में इट्स डूइंग वेल. या जहाँ जहाँ पे भी एक्सपोर्ट हो रही है. इंडिया में द मार्केट कुड हैव बीन मच बिगर. फॉर मी अब मैं अपना पर्सनल बताता हूँ. गॉट द जिमनी 3-4 months में सब कुछ बना दिया. अभी एज ऑफ राइट नाउ वी वुड हैव 70 प्रोडक्ट्स फॉर द जिमनी. ओके. ठीक है. 70-80 प्रोडक्ट सस्पेंशन से लेके परफॉर्मेंस रिलेटेड ग्रिल्स, कैरियर्स, साइड स्टेप्स, अंडरबॉडी जो भी है सब बना दिया. स्टिल कीप ऑन डेवलपिंग जो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड. मेरी मेन जो जिमनी हिट होगी आपकी हिमाचल में. हिमाचल में इट्स अ हिट. मतलब नाना करते हो. आई रिमेंबर सेलिंग 200-300 रूफ कैरियर्स इन अ सिंगल मंथ जिमनी के सिर्फ हिमाचल एक जगह पे. सो इतनी सेल्स मतलब मंथली आ रही थी एक ही स्टेट से. अभी भी आ रही है. सो जिमनी के केस में अब जैसे जैसे टाइम होता रहेगा यू कीप ऑन सीइंग वीडियोस. तो कहीं ना कहीं पे आई वुड से इट्स अ केपेबल व्हीकल जो वीडियोस में दिखता है, जो स्नो में जैसे चल रही है, जो लोगों का फीडबैक भी आ रहा है.
बट फॉर मी मेरी जैसे यूज होती है एज अ सिटी कार. इट्स अ स्मॉल कॉम्पैक्ट 4x4 व्हीकल, वेरी फन टू ड्राइव. उतनी स्पेस है जितनी होनी चाहिए. एंड इसके सिवाय द फिट फिनिश, द ओवरऑल डायनामिक्स ऑफ द व्हीकल आर pretty good. तो मैं अगर मेरे को फार्म वगैरह पे अपने जाना हो वगैरह तो दैट्स द व्हीकल आई वुड प्रेफर कि यार भगा के. ऑफ रोड पे बहुत अच्छी है. ऑफ रोड पे इन टर्म्स की बम्पी रोड वगैरह होंगी, आप रैली की जैसे जिप्सीज वगैरह यूज सीन, वो सेम डीएनए, भगा के ले जाओ वगैरह, यू वोंट फील मच इनसाइड. अनलाइक इवन माई हाईलेक्स, मेरी हाईलेक्स में भी तभी थोड़े बम्प्स हैं वो फील होंगे बिकॉज वो लिफ्टेड है, सस्पेंशन अच्छा है, तो बहुत मैंने अपग्रेड किया हुआ है, लेकिन थोड़े बम्प्स वगैरह फील होंगे. बट जिमनी में कम होते हैं रफ रोड्स पे. So I don't know, is it the suspension or is it because low ground clearance? But that's something I love about that vehicle. Torque कम है, उसके लिए भी we've worked on the performance upgrades. Pedal boosters वगैरह, wind booster वगैरह आते हैं, तो वो हमने लगा लिए, snorkel लगा लिया है. So keep on doing some experimenting with the vehicle, but overall I would say कि since past 1 year मेरे को जिमनी में काफ़ी काम करने में मज़ा आया. ओके. और आई थिंक हिमाचल का जो भी आप बता रहे हो, दैट कुड बी द रीज़न कि कॉम्पैक्ट कार 4x4, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारी जगहों पे देयर लॉट ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट रहता है, तो पार्किंग इट इज ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे रोड में भी कई बार पार्किंग होती है, सो थार वुड ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन कंपैरिजन टू दिस वन. मे बी यू आर राइट. और I think that's the only reason what I can see. That's why you don't see a lot of Jimneys with oversized tires like unlike Thar. पहले तो चलो टायर इतना एक oversize की लिमिट भी है उसमें आने की, but that being said, overall ऐसा साइड ना कि the dimensions of the vehicle are very perfect. मतलब 4 बंदे भी आराम से बैठ सकते हैं. I won't say पीछे वाले इतने comfortably बैठेंगे, लेकिन बैठ सकते हैं आराम से. And you won't feel कि जितनी बाहर से छोटी लगती है अंदर इतनी छोटी है. टोरा नहीं है ना, टोरा नहीं है. I will show you my Jimny. उसमें सब कुछ हुआ है, लिफ्टेड वगैरह भी है. रोड प्रेजेंस इसकी नहीं. अच्छा, it's possible रोड प्रेजेंस भी आ जाए. But if you comparing it to modified Thar, then of course yeah there are limitations. यही मुझे लगता था. एंड डेफिनेटली मतलब इट्स अ गुड प्रोडक्ट. एंड वन मोर थिंग, जिमनी के केस में हमारे साथ जो बिमरा के साथ एक पर्टिकुलर हुआ है, because not a lot of people got into Jimny modifications या products. दो ये vehicle बाहर available है, काफ़ी parts import भी होते हैं. थार तो Indian made vehicle ही है ना. Jimny के केस में काफ़ी सारे parts import भी करते हैं लोग. But not a lot of people got into Jimny की modifications और accessories I would say, because numbers इतने नहीं थे, तो most of the people are थार की साइड पे, क्योंकि थार numbers लाती है. Exactly. हमारे केस में यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज कंपटीशन कम था, तो वी काइंड ऑफ क्रिएटेड मोनोपोलीज. वो मोनोपोली ऐसे बन गई कि वो मार्केट हमने इसमें कैप्चर कर ली. आई वोंट से मच, बट 50-60% ऑफ द जिमनी की अगर ये एक्सेसरीज की मार्केट होगी तो वी हैव कैप्चर्ड दैट. अच्छा. सो कभी ऐसा हुआ है कि मारुति या महिंद्रा या इसूजू वालों ने आके आपसे कंसल्ट किया हो कि क्या बना रहे हो यार? एवरी मंथ होता है, ऐसा नहीं है. सो वी आर OEMs टू देम एज वेल. मारुति, अभी महिंद्रा के साथ भी आई वोंट गेट इनटू डिटेल्स, लेकिन प्रोजेक्ट्स ऐसे हमेशा चलते रहते हैं कस्टमाइजेशन के. रिसेंटली वी डिड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 50 थार्स. अभी देयर इज अ चांस 150 थार्स, 100 थार्स व्हाटएवर और आ जाएं. सिमिलरली टोयोटा के साथ वी वर्कड. अभी इनका हाईलेक्स जब इन्होंने लॉन्च करी थी उस टाइम पे कोई कंसेप्ट व्हीकल्स वगैरह बनाने थे. मारुति कीप्स ऑन कनेक्टिंग विद अस कि कुछ ना कुछ अगर जिमनी के रिलेटेड भी डेवलप करना. बट हमारा काम है इनको असिस्ट करना कस्टमाइजेशन एंड वन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में. I personally prefer not to go into the OEM वाला route, because we were OEM. Dad was an OEM to General Motors for the longest time. तो वो वाला भी मैंने देखा है रूट, बट फॉर वो आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ वो वाला काइंड ऑफ वर्किंग. मुझे जो समझ आता है कस्टमाइजेशन में समझ आता है, वेयर माई थिंकिंग कैप एंड माई कस्टमाइजेशन जूसेस आर ऑलवेज फ्लोइंग. So you're more of a B2C centric, not B2B centric. I would say नहीं, B2B में भी कस्टमाइजेशन होती हैं, बहुत होती हैं. ठीक है. इनफैक्ट अभी महिंद्रा कीप्स ऑन सेंडिंग मी देयर VVIP कस्टमर्स की क्या टेढ़े मेढ़े काम करने हैं, तो दिस इज द गो टू गाय. अच्छा. ठीक है. तो वो भी मेरे को उसमें भी मजा आता है, लेकिन आई स्टिल वुड नॉट वांट टू कि ये प्रोडक्ट एक सर्टेन प्रोडक्ट है. जैसे OEMs काम करते हैं, इसको करोड़ों क्वांटिटीज में बनाना, लेकिन दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक. तो फिर कहीं ना कहीं पे वहाँ पे यू हैव टू, ऑफ कोर्स वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम बहुत आता है उस वाली फील्ड में, लेकिन हाँ कस्टमाइजेशन का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है. एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, बट आई लास्ट अनदर वन बिफोर. सबसे टेढ़ा काम क्या किया है? अलग अलग रिक्वायरमेंट आई हो, मे बी OEMs मैन्युफैक्चरर से और मे बी जनरल कस्टमर ने, सबसे टेढ़ा काम. सी अगेन मैं
हर कुछ मंथ में कोई टेढ़ा काम आ जाता है। अभी रिसेंट ईयर्स में मैं आपको बोलूँगा, सो वी ऑल्सो वर्क विद लॉट ऑफ डिफेंस डिविजन्स। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कपल ऑफ ईयर्स बैक, तब डिफेंस का प्रोजेक्ट आया था, मतलब विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स, बट इनकी ऑपरेशन वैन्स वगैरह बनती हैं जो एक्सट्रीम जगहों पे जाती है, जहाँ पे ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रक्स नहीं जा पाते। नहीं, वो बेसिकली कंट्रोल सेंटर पूरा उस वैन के पीछे बनता है। समझ गए। ठीक है, वो कंट्रोल सेंटर बनता है, ऑप्स यूनिट आप बोल लो, एंड हमने वो पूरा डेवलप करना था। तो हमारे पास सिर्फ चेसी एंड ट्रक आया था, एंड हमें वो डेवलप करने थे। उसी के अंदर बीट योर एसीज, टेबल्स, ये वो इनकी ऑल द इक्विपमेंट हैड टू बी इंस्टॉल्ड। प्लस हमें हाइड्रोलिकली उसमें 4 वो शॉकर्स टाइप मतलब देने थे कि हमें पूरा वो लिफ्ट हो जाए। अच्छा। वो पूरा लिफ्ट होएगा। सो बेसिकली ट्रक के पीछे है, चारों हाइड्रोलिक्स खुलेंगे, पूरा यूनिट उठेगा, ट्रक नीचे से स्लाइड हो जाएगा, एंड वो पूरा कंटेनर अपनी जगह पे बैठ जाएगा फॉर मंथ्स। तो ये आपकी एक्सट्रीम जगहों पे जहाँ पे बिहाइंड मतलब जो अपने LOC वगैरह है उन जगहों पे, कम्युनिकेशन टावर्स वगैरह लगाने हाँ, होते तो वहाँ हैं पे दे वुड ऑपरेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉक्स यूनिट। और ये बड़े बड़े थे, मतलब जितना बड़ा हम ये स्टूडियो वगैरह उससे भी बड़े ये यूनिट्स होते हैं इनके। तो समथिंग इन द लाइंस ऑफ एवेटार में जो वो कहीं पे आप समझिए वो कंटेनर टाइप जो बना है। गॉट इट। तो ये ऐसा टाइप एक प्रोजेक्ट अभी कुछ साल पहले किया था। देन एक प्रोजेक्ट हमें महिंद्रा से आया था विच गॉट शेल्व्ड, बट वो उनको अपनी वो बनानी थी। दे हैड अ व्हीकल कॉल्ड वेरिटो जो इलेक्ट्रिक थी, उसमें दे वांटेड टू मेक कैब्स। वो कैब्स उनको जैसे आपकी ब्लू है मेरू कैब्स, आई so थिंक। what they had decided was सब सारे स्क्रीन्स के आगे टैबलेट्स लगे। तो वो टैबलेट्स वाज वन थिंग, चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह, प्लस देयर वाज अ शटर इन द मिडल बिटवीन द बैक सीट। वो शटर था कि प्राइवेसी के लिए, कि ये अच्छा। अलग बैठा हुआ है कोई और ये अलग बैठा, दे डोंट नो ईच अदर, दे आर शेयरिंग कैब्स। ये प्रोजेक्ट शेयर हो गया था कोविड करके। तो बेसिकली ये था कि 3 अलग अलग बंदे बैठे हैं, 3 of them have their own privacy, they are sharing a cab। समझ गए, हाँ, समझ गए। कंसेप्ट पूरा ये था। तो दिस वाज अ गुड प्रोजेक्ट, इसकी भी गाड़ी हमने बनाई थी। ऑर्डर भी आ गया था, लेकिन वो शेल्व हो गया आफ्टर कोविड। सबने और डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, rather than sharing cab they were कि प्राइवेट गाड़ियों में चलते हैं। सही बात है। Then there was recently again few years back there was a customer who had got a caravan to us, वो फोर्स की, ठीक है, दैट ट्रैवलर, द अर्लियर वन, नॉट द अर्बेनिया। उसमें पूरा हमने वुड के प्लैंक्स को लेके पूरा अंदर मोटर होम बनाया था। सो मोटर होम एज इन के अंदर टॉयलेट से लेके, दिस पर्टिकुलर कस्टमर वांटेड टू टेक द व्हीकल ऑल ओवर इंडिया। सो बट इस केस में हमने वी हैड जस्ट यूज्ड वुड, सो समथिंग लाइक जो आपकी पीछे लगी हुई है, इट हैड द होल सेम वही पूरी लुक फील थी, मेड इट वेरी इन अ वे कि और कोई आपको एलिमेंट दिखे ना, मेटल ना दिखे, कुछ ना दिखे। सो इफ यू हैड लुक्ड एट द इंटीरियर्स, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उसका, बट इट हैड ऑल द फीचर्स, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सिंक, एवरीथिंग वाज देयर, बट एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ कैमोफ्लेज्ड कि आपको सिर्फ दिखे तो दिखे कि अंदर से रॉ वुड है। समझ गए। तो अब इन जैसे ये वाला व्हीकल का आपने बताया कि दिस यू कस्टमाइज्ड इट, एंड दैट आर्मी व्हीकल दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, अब थार की तो टेस्टिंग यू टुक इट एज एक्सपेडिशन, टेस्टिंग की कि प्रोडक्ट ठीक लगा है कि नहीं। इन व्हीकल्स की कैसे टेस्टिंग करते हो? ये व्हीकल्स में देखो, पहले तो मैं अब कस्टमाइजेशंस कम लेता हूँ, ठीक है, दैट्स वन थिंग। और लेता भी तो आई वुड वांट टू नो कि कस्टमर इज ऑन द सेम पेज एज मी, कि यहाँ पे टेस्टिंग ऑन द गो होएगी, ऑन द गो ऐसे होएगी, प्रॉब्लम आ सकती है, वी आर मेकिंग समथिंग न्यू। तो कस्टमर जनरली इस केस में ऐसा होना चाहिए, ही इज गेम की मैं कुछ नया करवा रहा हूँ, जो भी चैलेंजेस आएंगे मेरे को वो रेक्टिफाई करने के लिए बिम्बरा बैठा है, लेकिन चैलेंजेस आ सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि मैं एक ही बार में इसको बना के बिना टेस्टिंग के कुछ भी नहीं बन सकता। फिनिश प्रोडक्ट एकदम नहीं बन। कस्टमाइजेशन का ये पहला रूल है कि इट विल नॉट बी अ फिनिश प्रोडक्ट इन द फर्स्ट गो। आपके देयर इज अ चांस कि कोई ना कोई हिकअप आए, छोटा सा हिकअप ऐसे भी आ जाए कि नट बोल्ट भी ढंग से अगर टाइट नहीं हो रहे, कोई चेंजेस हो सकते हैं जो हमें करने हो, बट वो जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे द कस्टमर इफ ही इज गेम कि हाँ भी ये मेरे को करना ही है, मेरे को टेस्ट करके फीडबैक देना है, देन इसको रेक्टिफिकेशन होना है, तो देन वी टेक अप दैट कस्टमाइजेशन जॉब। अदरवाइज वी प्रेफर कि हाँ भी जो भी टेस्टिंग हो अपनी गाड़ियों पे हो। तो कभी आप जैसे सड़क पे जाते हो एंड यू सी योर प्रोडक्ट बगल वाली गाड़ी में, पार्क गाड़ी में, तो क्या फीलिंग क्या आती है? मतलब कि वो एक फील होता है कि हाँ
achieved something kind of a thing. अर्लियर जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग तब कम दिखते थे थार CRDs वगैरह, तब बड़ा प्राउड फील होता था। अच्छा, ठीक है, अब मास प्रोड्यूस्ड होते हैं काफ़ी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो अभी भी इनफैक्ट आपके पास आ रहा था 2-3 गाड़ियाँ दिख गई थी जिनमें कैरियर हमारा लगा हुआ है या वो दिख अच्छा। जाता है। बट अब आई थिंक व्हाट हैज चेंज्ड इज कि मैं सबसे पहले देखता हूँ कि अभी फिनिशिंग तो ठीक है, फिटिंग ठीक है, हाँ, कोई कमी तो नहीं, समथिंग आई कैन लर्न, what I can क्या improve. मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, कोई लॉन्ग रन में ये लग रहा है टेढ़ा तो नहीं हो गया कहीं पे कि कोई मेरे डिज़ाइन फ्लॉ तो नहीं है। तो अब मेरे दिमाग में भी ये आता है। तो कभी जैसे कहीं पार्किंग में किसी ने किया हुआ है, हैव यू गॉन टू देम एंड सेड कि यार इसमें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको? हमेशा होता है अभी भी अच्छा, पूछते हो? नॉर्मल कस्टमर से पूछते हो? हाँ, कि अगर वी हैव अ कॉन्वर्सेशन, दो आई एम एन इंट्रोवर्ट, अगर कोई नॉर्मल नहीं, कॉन्वर्सेशन जनरल पब्लिक में मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। नॉट टू द पर्सन दैट यू हैव इंस्टॉल्ड। हाँ, किसी डीलर के, दिल्ली के डीलर के थ्रू लगा वो, यू हैव गॉन टू सम इवेंट पार्किंग की, वहां पे दूसरे ने भी रखी हुई है जिसमें आपका प्रोडक्ट लगा है। आई कीप मेक श्योर कि मैं फीडबैक लूँ कि कोई Oh, कोई okay. दिक्कत तो नहीं आ रही है। अच्छा, कोई अगर आ रही है दिक्कत तो Oh, यू that's कैन really कम nice. टू अस डायरेक्टली या मेरे को बताओ तो कि व्हाट कैन वी इम्प्रूव ऑन। पहला तो मेरा यही होता है ना कि अगर द ओनर इज नियर बाय, ऑफ कोर्स आई विल हैव अ कॉन्वर्सेशन। कोई नहीं होएगा तो मैं ऑफ कोर्स जाके ये ज़रूर देख लूँगा कि हाँ भी सब ठीक है, नहीं है, इज इट एज पर माई सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ठीक है। When there are certain products that you're doing for Thar, there are certain products doing for Isuzu and Hilux and all. इसी सेगमेंट की और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो 4x4 नहीं है एक्चुअली। इनोवा हो गई, आपकी एंडेवर थी, और आपके फॉर्च्यूनर हो गई। सो व्हाई डोंट यू टारगेट दिस, क्योंकि इसके तो मास प्रोडक्शंस भी हैं एंड सेम प्रॉब्लम्स अगर वो पेडल की है, फुटरेस्ट की, थार में है, वो उसमें भी सेम है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हैंडल वाले जो हैं वो भी उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। इनोवा में आगे की तरफ नहीं लगा हुआ है, फॉर्च्यूनर में तो है। तो उसके लिए क्यों नहीं कर देते हो? मतलब इट्स जस्ट दैट यू आर रेप्लिकेटिंग द थिंग, उसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस करके। टू थिंग्स, पहली चीज़ तो आई ऑलवेज प्रेफर कि गाड़ी मैं खरीद लूँ और उस पर ट्रायल एंड करूँ। अगर मैं इसके हिसाब से गया तो गाड़ी मेरे को हर दूसरे बहुत महीने सारी बहुत गाड़ियाँ खरीदनी खरीदनी पड़ेगी। Okay. दैट बीइंग सेड, सो माई स्पेशलाइजेशन व्हाट आई हैव चोजन इज 4x4। 4x4. ठीक है, 4x4 में भी और भी गाड़ियाँ हैं, इट्स नॉट लाइक नहीं है। अभी स्कॉर्पियो एन हमारे पास आती है, ठीक है। ठीक है, स्कॉर्पियो एन में भी वी मेक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड विच आर द रेंज इज ग्रोइंग। सिमिलरली फॉर्च्यूनर जो करंट वाली है उसकी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा, एंडेवर की भी हैं, थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है, इतनी बड़ी रेंज नहीं है। जैसे थार जैसे में 125 प्रोडक्ट्स हैं, जिमनी हाइलेक्स में 70 प्रोडक्ट्स हैं, इसूजू में भी 60 प्रोडक्ट्स होंगे, इनमें सारे फॉर्च्यूनर एंड स्कॉर्पियो में 15-20 प्रोडक्ट्स होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज प्रोडक्ट्स जो हम हमेशा हमारे पास होती हैं। प्लस कस्टमाइजेशन असाइड, ये प्रोडक्ट्स हैं जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी हमारे पास ऑल टाइम्स हैं प्रोडक्ट। इसके सिवाय देर आर अदर, यू सेड कि और भी गाड़ियाँ वगैरह हैं, बट अगेन माई फोर्टे इज 4x4। तो यही गाड़ियों में वी गेट प्लेंटी ऑफ, आई वुड से नॉट वर्क, बट हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हैं कि इनमें बहुत कुछ अभी भी गुंजाइश है बनने की। प्लेट इज ऑलरेडी फुल। हाँ, द प्लेट इज ऑलरेडी फुल, बट एंड द व्हीकल्स आर ग्रोइंग एवरी ईयर। अगेन एज आई सेड वी स्टार्टेड विद थार CRD, उस टाइम पे जिप्सी होती थी, लेकिन जिप्सी वो स्टिल लोग डिसकंटिन्यूड या बैचेस में बनती थी, तो जिप्सी पे भी हम काम करते थे, ऐसा नहीं करते थे। बट थार CRD इज व्हाट गॉट अस ऑन टू द मैप। उसके बाद धीरे धीरे करके हमें तो उसी से हम खुश थे। देन थार CRD के नंबर्स भी कम हो गए, देन इट गॉट डिसकंटिन्यूड, लेकिन नहीं थार आ गई। उसके बीच दौरान में इसूजू आ गई। इसूजू आई नेवर थॉट कि वुड पिक अप, कि भाई पिकअप ट्रक का इंडिया में कंसेप्ट पहले भी इन्होंने ट्राई किया, गेटवे ने भी ट्राई करा, वो महिंद्रा ने भी किया, टाटा ने ट्राई करा विद ज़ेनॉन। We did work on those vehicles as well. अच्छा खासा काम किया, लेकिन वॉल्यूम नहीं था। As per you, why they failed? I think the positioning wasn't right. Positioning in terms कि जिस टाइम पे भी आए हैं और जो इनकी पोजिशनिंग थी इंडिया में ना, अब तो चलो द कंसेप्ट हैज चेंज Tier 1 सिटीज में एटलीस्ट, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को डाले वाली गाड़ी दूध वाली गाड़ी लगती है। हाँ। ठीक है, अब वो माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत करना है, वो जगह पे है। अब तो एक डाले वाली गाड़ी इतनी महंगी कैसे हो सकती है? मैंने आई टोल्ड यू इसूजू मैंने 16 लाख समथिंग की ली थी, तो उसका दैट्स अनहर्ड ऑफ ना लोगों के लिए कि 16 लाख की डाले वाली गाड़ी। तो वो कौन सी टाटा मैक्स आती थी और कुछ उसके भी पीछे डाला होता था ना? हाँ, ये सारी गाड़ियाँ आपकी उसमें 1/3 रेट्स पे, हाफ द रेट पे है, जो बाकी डाले वाली गाड़ी उससे पहले आती थी उस टाइम पे। तो आई थिंक Xenon was a product ahead of its time. It was still made as per international standards. It's a good product. कि लुक वाइज
गेटवे तब भी महिंद्रा ने अपनी पिकअप ट्रक पे थोड़ा सा एनहांस करके वो ऑल द एसेट्स दे ऑलरेडी हैड मिक्स एंड मैच करके शायद बनाई होगी. इट वाज अ गुड व्हीकल बट इट वाजंट समथिंग कि आपको देख के वाव हो एकदम. ठीक है. इसूजू आई, इसूजू का प्राइसिंग जो था एंड व्हाट दे हैड ऑफर्ड, और इसूजू का नाम भी पीपल न्यू कि इसूजू इंजन्स आर नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी, जापानीज. तो इसूजू वाज अ हिट. देन अभी what Isuzu started, Hilux is doing, it's carrying on the legacy. So कहीं ना कहीं पे एक मार्केट पिकअप ट्रक्स की भी इंडिया में बन गई है. It's growing slowly but it is growing. People have started accepting People have started accepting it. अब देख के वो लोगों को पता है कि हाँ भी Hilux क्या है, Isuzu क्या है. आज से 5-7 साल पहले बोलो तो उनके लिए होता था ये कौन सी इंपोर्टेड गाड़ी आई है. Exactly. हाँ. So अभी तक हम बात कर रहे थे कि how Bimra has succeeded in the market with the products. ठीक है. ऐसे कोई प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं जो मार्केट में बिल्कुल चले ही नहीं, कस्टमर कंप्लेंट्स आई हैं, दे हैव रिटर्न्ड द प्रोडक्ट्स बैक. सो हाउ हैव यू हैंडल्ड दैट पार्ट? So part of any development process is when we were growing as a company, what a lot of companies do wrong is they experiment on the customer. जो अभी भी इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी कुछ हैं जो करते हैं कि पहले इनिशियल लॉट ऑफ कस्टमर्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं. दे टेस्ट द व्हीकल्स, कस्टमर्स उनके टेस्ट करते हैं व्हीकल एंड जो फीडबैक आती है फिर बाकी वाले कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के उनको रेक्टिफाई करते हैं. वर्जन 2 निकाल देते हैं या वो रिकॉल कर देते हैं. व्हेन वी वर मतलब इवॉल्विंग तो ये भी प्रॉब्लम्स आती थी. हम तो प्रोडक्ट को एक सर्टेन लेवल तक टेस्ट कर सकते थे, प्रोडक्ट बना लिया, लॉन्च कर दिया, उसके बाद पता चला ये प्रॉब्लम आ रही है. रिसेंट टाइम्स में आई वुड से अगर कुछ सालों में बात करूँ, वी टाइड अप विद अ कंपनी. वो हमने पाउडर कोटिंग के अपना प्रोसेस चेंज किया. पाउडर कोटिंग हमने प्रोडक्ट्स बना दिए. उस टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई बट आफ्टर सर्टन वाइल वो रस्टिंग स्टार्ट होगी उस वाले पाउडर कोटिंग में. इट स्टार्टेड चिपिंग. हम अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हम थर्ड पार्टी से पाउडर ले रहे हैं ना, हमारी तरफ से सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन वो पाउडर स्टार्टेड चिपिंग. तो रस्टिंग आ रही है. फीडबैक कस्टमर्स की कि हाँ भी ये तो हमने प्रोडक्ट अभी 6 महीने हुए हैं, इतना टाइम हुआ है, कुछ मंथ्स हुए हैं, रस्टिंग क्यों आ रही है. Then you have to listen to the complaints, you have to rectify them, identify them. So we give solutions. हमने कहा यार रिप्लेस करते हैं. चलो रिप्लेसमेंट इज स्टिल टेम्पररी कि पाउडर कोट तो भी वही यूज़ हो रहा है ना. बैक इन द बैक स्टेज में हमारा एकदम प्रोसेस, सारी मशीनरी स्टार्ट हो गई. हाउ डू वी ओवरकम दिस? तो वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद अदर पाउडर्स, अदर ब्रांड्स. उसमें हमने टेस्टिंग प्रोसेस को अपना और चेंज किया. हमने कहा यार हम हर बार कस्टमर पे तो टेस्ट नहीं कर सकते कि जब तक अगर कोई हम एनसीआर वगैरह में चला रहे हैं स्टिल फाइन. हमारे प्रोडक्ट्स तो वहाँ पे कोस्टल एरिया पे भी चल रहे हैं ना, गोवा वगैरह में भी, केरला भी जा रहे हैं, गोवा भी जा रहे हैं, जहाँ पे मॉइस्चर है और वो सॉल्टी वाटर है, वहाँ पे तो रस्टिंग का इशू वैसे भी आ जाता है. सो हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी परफॉर्म करें जैसे बाकी जगह पे करते हैं. तो व्हाट वी डिड कि हमने अपना ट्रायल का प्रोसेस और स्ट्रिंजेंट करा. We try to understand from the company कैसे हम better trials कर सकते हैं. How do we so there were other techniques. हमने भी we learned, we changed it. Now everything's fine. But ये एक challenge भी recent times में आया. ऐसे बड़े सारे challenges I'm sure और पीछे आए होंगे. The whole thing is you accepted, identified कि ये problem है and keep on changing with it. अब उसी वजह से आज की डेट में इफ आई एम टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, मेरे को गाड़ी खरीदनी पड़ती है क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी पर ट्रायल करना है. आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट ऑन अ कस्टमर्स व्हीकल. मैंने एक नया प्रोडक्ट बना दिया, कस्टमर के व्हीकल पर ट्राई कर दिया. कस्टमर जितना भी अच्छा हो, वो एक बार टूटेगा प्रोडक्ट, 2 बार टूटेगा, 3 बार टूटेगा, चौथी बार हर कोई इंसान है ना इरिटेट हो जाएगा कि यार ये क्या बना रहे हैं. True. मेरी गाड़ी पे 10 बार टूट जाए, खराब हो जाए वगैरह, मुझे प्रॉब्लम नहीं है ना. वो इवॉल्व होगा. हाँ, आई विल कीप ऑन वर्किंग जब तक कि आई डोंट मेक द परफेक्ट प्रोडक्ट. सो आई वुड रादर प्रेफर कि मैं अपनी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करके फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग करके करूं, विच इज द टोयोटा की स्ट्रैटेजी. ठीक है. टोयोटा यही करती है. व्हेन दे ब्रिंग देयर प्रोडक्ट्स आउट इनटू द ओपन, दे डू थरो एक्सपेरिमेंटेशन. तभी आपके टोयोटा को रिलायबल एक बैज मिला. ऐसे ही नहीं मिला कि टोयोटा रिलायबल है. आई एम नॉट टेकिंग नेम्स बट देयर आर जर्मन ब्रांड्स या ये वगैरह विच और भी ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स विच ब्रेक डाउन. नए प्रोडक्ट्स में तो प्रॉब्लम्स आनी है विच इज अंडरस्टूड. जो एक आम कंज्यूमर मान के बैठा हुआ कि नई गाड़ी है, मेरे को नहीं लेनी, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी. फर्स्ट लॉट में मत खरीदना. ये मेंटालिटी बन गई है ना. क्यों बनी है?
वो इसलिए बनी है बिकॉज अभी भी कंज्यूमर्स पे टेस्टिंग हो रही है. तो आई थिंक companies are evolving. It's not they're not evolving. They have made newer testing techniques कि इनिशियल लॉट में भी जो कंज्यूमर को जाए तो एक परफेक्ट प्रोडक्ट जाए. टेस्ला तक आज तक करती है. टेस्ला का साइबर ट्रक कितनी बार रिकॉल हो चुका है. तो दे डिडंट डू प्रॉपर टेस्टिंग ना. मार्केट में बस जल्दबाजी थी, लॉन्च करना था, कर दिया. लॉन्च के टाइम पे ना वो मारा था वो आई थिंक वो उसी टाइम पे फेल हो गया था. हाँ. वी ऑल सीन दैट वीडियो. वो ठीक है, अब जिसने लेना उसने तभी साइबर ट्रक ले रहा है ना इतना महंगा. बट क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी प्रोडक्ट्स को डीलर से वापस मंगाना पड़ा हो बिकॉज कंप्लेंट्स आ रही हैं उसकी? तो स्टार्टिंग में पता चल जाता है अगर मेरे डीलर्स के पास सामान गया हुआ और वी थिंक कि हाँ भी ये प्रोडक्ट ही फॉल्टी है. शिपिंग की प्रॉब्लम तो 6 months 8 months डाउन द लाइन है. अब जैसे कि अगर हमने कोई लेट्स से एक्स प्रोडक्ट बनाया है जिसमें वेल्डिंग का ही इशू है एंड वी नो कि इट विल क्रैक, तो हम इमीडिएटली हम व्हाट वी मेक श्योर इज कि सारा रिकॉल जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में गए होंगे रिकॉल कर दो एंड सेंड अ अपडेटेड वर्जन ऑफ दैट, रेक्टिफाइड वर्जन ऑफ दैट. और अगर हमें लग रहा है कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम तो फिर वो ऑल टुगेदर उसको डिसकंटिन्यू कर दो जब तक कि हम रेक्टिफाई ना कर सकें. राइट. सो हाउ डू यू मेंटेन दिस डीलर नेटवर्क? मतलब या उनको कैसे, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत सारे होंगे मार्केट में, नॉट जस्ट दैट यू आर डूइंग इट, तो वो आपका प्रोडक्ट बेचें टू द लेवल दैट दे आर सेटिस्फाइड कि यहाँ से मुझे ना आंसर मिलेगा. क्योंकि बहुत सारे ना मैन्युफैक्चरर्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि अच्छा डीलर बोल रहा है बट वहाँ से कोई आंसर नहीं आ रहा, देयर इज नोबडी लिसनिंग टू देम. तो वो आप क्या वो चीज करते हो कि डीलर इज स्टिकिंग सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड हाउ डू यू ग्रो योर डीलर नेटवर्क? व्हाट आर द क्राइटेरिया? व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि कम्युनिकेशन लाइंस हैव टू बी ओपन ऑल टाइम्स बोथ वेज. वी आर आल्सो कम्युनिकेटिंग विद द डीलर कि ये चीज़ें नहीं बन रही हैं, ये चीज़ों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, this is what is expected of you. Dealer also keeps on giving us feedback, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कोई चैलेंज आ रहा है फिटमेंट का. दिस इज अ एवरी डे प्रोसेस, मल्टीपल टाइम्स अ डे प्रोसेस. अगर मेरा बड़ा सिंपल सा है कि इट्स नॉट जस्ट मी एंड द डीलर, और भी बीच में 4 बंदे मेरी टीम के होंगे और कुछ डीलर की टीम साइड से भी होंगे, वो ऑलवेज कम्युनिकेटिंग एंड आई मेक श्योर पर्सनली मैं हर ग्रुप पे हूँ या डीलर के साथ आई एम इन द लूप कि क्या चल क्या रहा है. ऐसा तो नहीं कि बैक एंड पे सब कुछ चल रहा है, आई वांट टू नो क्या चल रहा है. सो विद लेट्स से वी हैव अप्रॉक्सिमेटली 40-50 डीलर्स राइट नाउ. सो इनके साथ एवरीडे कम्युनिकेशन चल रहा है, बी इट ऑर्डर वाइज कि उनकी तरफ से ऑर्डर आ रहा है, बी इट हमारे यहाँ से जो डिस्पैच जा रहा है, एंड ऑल द प्रॉब्लम्स और ऑल द चैलेंजेस इन बिटवीन. ठीक है. अब कम्युनिकेशन एक क्लियर हो जाता है डीलर के साथ तो यू विन कॉन्फिडेंस कि हाँ भी ये बंदे हैं, दे आर लिसनिंग टू मी. सेकेंड इज आफ्टर सेल्स. आई वुड से कि हमारा आफ्टर सेल्स इज, मतलब मैं ज़्यादा ब्रैग नहीं करूँगा, हमारा आफ्टर सेल्स इज गुड, वेरी गुड कंपेयर टू इंडस्ट्री. मैं ऑटोमोबाइल आफ्टर मार्केट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. वी डोंट आस्क मच क्वेश्चंस. प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन, चेंज कर दो प्रोडक्ट को, दैट्स वन सोल्यूशन. बड़ा प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा वगैरह आ रही है, चलो यू फिक्स इट ओवर देयर, वील बियर द कॉस्ट. अच्छा, ठीक है. तो नो क्वेश्चंस आज, जेब से नुकसान हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू हैव टू गिव अ सोल्यूशन. ठीक है. रॉन्ग प्रोडक्ट शुड नॉट गो आउट इन द मार्केट. मतलब कोई डिससैटिस्फाइड कस्टमर नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आई एम एबल टू मेक श्योर कि हाँ भी एक मतलब एक कस्टमर इज सैटिस्फाइड, मेरी तरफ से 100% हो जाए, आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स. ओके. मान लो लेट्स से एक एक्स जगह पे कोई छोटे से टियर 3 सिटी में किसी ने मेरा एक प्रोडक्ट लगाया किसी डीलर से उसको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम आ रही है. If that customer reaches out to me, how will he reach out to me? Of course, हमारे WhatsApp वगैरह अवेलेबल है, हमारा IVR कॉल भी अवेलेबल है. लेट्स से फ्रस्ट्रेटेड होकर कस्टमर रिव्यू डाल देता है या कहीं पे सोशल मीडिया पे डाल देता है. माई टीम इज ऑलवेज ट्रैकिंग, सोशल मीडिया भी ट्रैक कर रही है, गूगल रिव्यूज भी ट्रैक कर रही है, दे आर वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ डीलर से भी कम्युनिकेशन तो चल ही रहा है. तो हमें कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी, सम जगह पे कोई कस्टमर डिससैटिस्फाइड है. देन मेरी एक सर्टन टीम के बंदे मैंने अलॉट किया कि नाउ यू आर द टास्क फोर्स कि तुम्हें वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, जैसे भी जो करना है करो. फ्री में प्रोडक्ट देना है, नया प्रोडक्ट देना है, जो करना है, बट मेक श्योर दैट कस्टमर इज सेटिस्फाइड. नेगेटिव का पॉजिटिव रिव्यू, नेगेटिव को पॉजिटिव हमें कन्वर्ट करना ही करना है. देखो 95% केसेस में भी सक्सीड, शायद ज़्यादा ही होएगा, बट ऑफ कोर्स यू कांट, जो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन. वो एक लाइफ का फैक्ट है. तो वो 1-2-3% व्हाटएवर कस्टमर्स जो इस लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि हाँ भी अब नहीं, इस लेवल पे भी नहीं फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन वो आर नॉट रेडी टू बी सेटिस्फाइड. आप उनको जबरदस्ती नहीं उनको कर सकते, नहीं यार खुश हो जाओ. वो आप नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ट्राई. बट डेफिनेटली आई हैव सीन योर ऑनलाइन थिंग, सो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इज प्रीटी गुड.
सो विच इज़ अ गुड पार्ट. जो आप ये आफ्टर मार्केट कस्टमाइजेशंस बोलूँ, अपग्रेड्स बोलूँ, मॉडिफिकेशंस बोलूँ, सो एज पर गवर्नमेंट लॉ these modifications are not ideally allowed on the car. आफ्टर मार्केट जो होता है ये नॉर्मली लीगल नहीं है. सो हाउ डू यू अबाइड बाय दैट, या कुछ आप उन्हीं के नॉर्म्स के अंदर में कर रहे हैं, या कैसे करते हैं, मतलब हाउ डू यू गो बाय दैट? अब मैं इसका ऑनेस्टली देयर इज नो क्लियर आंसर. आप किसी को भी बुलाओगे अपने पॉडकास्ट पे जो हुज टू डू विद एनीथिंग विद कस्टमाइजेशन, एवरीवनस इन द डार्क के एक्चुअल लॉज क्या हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं, हम कौन सा मोटर व्हीकल एक्ट फॉलो कर रहे हैं. बाय लॉ टेक्निकली इवन changing the headlight bulb or anything which is not coming from the OEM is not allowed. ये तो पहली आप चीज़ समझ लो. बाय लॉ आप अपनी गाड़ी में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं. छोटी से छोटी चीज़ भी सोच लो वो भी नहीं आप कर सकते. जो OEM से आया है वही है. अब दैट बीइंग सेड, क्या अलाउड क्या है, मैं लीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, अलाउड क्या है, दैट वी ट्राई टू मेक श्योर कि वो अलाउ वाली चीज़ एटलीस्ट हो जाए. सो व्हाट वी हैव डन इज वी मेड श्योर ऑफ कोर्स ऑल द प्रोडक्ट्स बोल्ट ऑन हो, कोई परमानेंट कस्टमाइजेशन ना हो, सो एवरीथिंग इज रिवर्सिबल. दैट्स वन प्रायोरिटी आई हैव व्हेन आई एम डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, कि यार हर चीज़ रिवर्सिबल हो. वर्स्ट केस में हमें अगर होल्स भी मारने पड़े तो इवन दैट होल्स कैन बी कवर्ड लेटर ऑन. अगर कोई कस्टमर कहता है आई एम डन विद दिस एक्सेसरी, अब नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं अगर हमने कुछ परमानेंट ऑल्ट्रेशन भी करी है विच इज मैक्सिमम केस में होल्स करना, तो वो भी हम किसी तरीके से कवर कर दें कि वो अपेयर ना हो. बट वो जनरली पिकअप ट्रक्स वगैरह में होता है जहाँ पे अगर डाले में कोई रोल केज वगैरह लगा रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज होल्स भी नहीं होते. ठीक है, तो बोल्ट ऑन होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए. एक्सेसरी इतनी लाउड ओपन ना हो कि इट मर्जेस विद द व्हीकल. अब अगर मैं बम्पर्स बना रहा हूँ, I won't make a very bulging out bumper. It should look part of the vehicle कि original bumper हटा और उसकी जगह ये लग गया. ठीक है, ठीक है. So that's more or less acceptable. लेकिन अगर बम्पर बहुत उसके आगे पाइप वगैरह वो गार्ड की तरह लगी हुई वगैरह, of course the cops will stop you. कि बम्पर आपने लगा दिया बड़े से, उसके आगे वो रोल बार वगैरह लगे हुए हैं, बुल गार्ड लगे हुए हैं, वो अलाउड ही वैसे ही नहीं है. और कॉप्स तो सबसे पहले वही चीज़ देखते हैं. दो आई कम टू द लॉज जो बाहर की कंट्रीज में फॉलो होते हैं वर्सेस इंडिया में. बट इंडिया में अभी ये सिनारियो है कि यू वर्क अराउंड, यू मेक डेवलप दोज प्रोडक्ट्स जो अलाउड हो रोड पे, जहाँ पे किसी कस्टमर को हैरेस ना किया जाए. इवन द रूफ रैक्स वी आर मेकिंग, दे आर एज स्लीक एज पॉसिबल. मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि कोई भी कुछ भी बड़ा ना हो कि जो लाउड हो, बल्ज आउट करे. गाड़ी के डायमेंशन से बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं, और लगे भी तो लगे कि गाड़ी का OEM प्रोडक्ट है. बट वी कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम स्टिल बीइंग स्टॉप्ड बाय द कॉप्स. कुछ स्टेट्स में होता है जहाँ पे अथॉरिटीज़ रोक लेती हैं, फिर वो कस्टमर्स दिखाते हैं कि अभी ये नेट पे देखो रूफ कैरियर्स अलाउड है नहीं है, जिसका चलान करना है, जिसने 500 रुपये लेने उसने लेने ही है. मेरे साथ भी हुआ है. अच्छा. ठीक है, मैं आई वोंट लाई, मेरे साथ भी हुआ वगैरह. मेरी व्हीकल्स ऑल ऑफ देम आर मॉडिफाइड, लेकिन आई मेक श्योर कि वो अब मैं डेली गुड़गांव चलाता हूँ, कोई नहीं रोकता. लेकिन किसी दिन बुरा दिन हुआ, कोई ऐसी जगह पे किसी ने रोक लिया कि ये तो अलाउड नहीं है, पुलिस वालों ने कहा, मैं अब उनसे कहाँ बहस करूँगा, कहाँ उनको दिखाऊंगा कि हाँ भी ये लॉज है, ये नहीं है. तो ठीक है, दिस इज व्हाट इज देयर, इट इज देयर. चाहते क्या हो सर? चाहते क्या हो सीधा. बट हाँ, व्हेन वी आर डिजाइनिंग एनी एक्सेसरी, we make sure कि it looks part of the vehicle, it's bolt on, it's reversible, it is allowed, acceptable. ठीक है. ये एक्सटीरियर एक्सेसरीज की बात है. इंटीरियर्स में तो कोई फाइट ही नहीं है, और जो चीज़ें दिखती नहीं है अंडर बॉडी वगैरह उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. एक्सटीरियर्स में जनरली आपका आ जाते हैं बम्पर आ जाते हैं, रूफ रैक्स आ जाते हैं, ये चीज़ें वगैरह. एंड बाहर जो आइडियली आई वुड वांट कि लॉज हमारे अब इवॉल्व हो, चेंज हो. ऑस्ट्रेलिया वगैरह में व्हेन यू आर मेकिंग दीज 4x4 व्हीकल्स, आप अपने लाइसेंस पे चढ़वा सकते हो दिस इज अ 4x4 डेडिकेटेड व्हीकल. अच्छा. तो वो सॉरी लाइसेंस नहीं, वो RC पे, RC पे ही चढ़ जाता है वगैरह. तो दैट्स उन्होंने इतना आगे बढ़ गए हैं कि हाँ भी इवॉल्व कर लिया है अपने आप को कि अगर उनका व्हीकल है ही 4x4 के लिए बना हुआ तो कोई रोक नहीं सकता. बट ऑफकोर्स द मॉडिफिकेशंस हैव टू बी अंडर द लिमिट. जैसे ऑस्ट्रेलिया में 4 इंच लिफ्ट किट्स तक अलाउड है,
4 इंच गाड़ी उठा लो, लेकिन उससे बियॉन्ड लीगली अलाउड नहीं है रोड पे चलानी. ट्रू. यू कैन ओनली यूज इट फॉर रिक्रिएशनल यूज. बट यहाँ पे तो आप हल्की से भी उठा लोगे तो टेक्निकली तो इलीगली है ना. आप आधा टायर्स इंच. जो हैं थोड़े से भी बाहर चले गए बॉडी से, so they are not allowed So ideally. there are गाइडलाइंस, आप क्या क्या चीज़ें करा सकते हो. इफ़ यू आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस तो यू आर गुड टू गो. ये काफ़ी कंट्रीज़ में हो रहा है, यूएस में भी ऐसा हो रहा है वगैरह. आई एम नॉट टू फेमिलियर कि एग्जैक्टली क्या लॉज वगैरह हैं, क्या लीगैलिटी वहाँ पे, लेकिन यू सी मॉडिफाइड व्हीकल्स आम ना रोड्स वगैरह पे. ऑस्ट्रेलिया में दिखती है, यूएस में दिखती हैं, अफ्रीका का कुछ कंट्रीज वगैरह में दिखती हैं वगैरह. वाई? बिकॉज इट्स अलाउड. और कॉप्स नहीं रोक रहे होते. हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स में तंग करते हैं. आई डोंट नो इफ यू हर्ड, केरला वगैरह में पीछे काफ़ी ड्राइव चल रही थी मॉडिफाइड व्हीकल्स को रोकने की. एंड हर कुछ सालों में सुनाई देता है कि यही सारे फिर हेल्प कर रहे होते हैं, रेस्क्यू कर रहे होते हैं. सुमो की लिमोजिन बना दी थी, वो कहाँ से अलाउड होगी? दैट बीइंग सेड 4x4 व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूँ. हर कुछ सालों में हमें पता चलता है केरला में अलग ड्राइव चल रही है, सबको रोक रहे हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के लिए भी रोक रहे हैं. लेकिन जब भी वहाँ पे फ्लडिंग होती है, कुछ होती है, सबसे पहले ये 4x4 वाले वहाँ पे जाके रेस्क्यू कर रहे होते हैं. आई डोंट नो इफ यू फॉलो वगैरह, पर आपको सर्च करना वगैरह. जब भी केरला उस साइड में फ्लडिंग वगैरह हुई है, ऑल द 4x4 पीपल दे कम टुगेदर एंड दे मेक श्योर कि हम भी रेस्क्यू का वर्क सारा वो करते हैं. ऑब्वियसली मतलब केपेबल व्हीकल्स उन्हीं के पास ही हैं. एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है मेरे को अभी while we are talking, and this is related to the customization or the product part that you do. What kind of a difference of requirement are there with coming to you when there is a lady who is giving you the requirement and the men giving you the requirement? तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि ये मेरा वाला पिंक नहीं है? I think with the Thar it has changed. थार के आने के बाद यू सी लॉट ऑफ लेडीज ड्राइविंग द थार ना. बट उनकी अपनी होता है ना परसेप्शन की इट शुड लुक लाइक अ विमेन कार. नहीं, अगर मैं डायनामिक्स वो डेटा देखूंगा पूरा, I don't think there's a lot of difference in terms of what the ladies choose as customization and what men choose as customization. Okay. Especially for the Thar. That's interesting. मतलब अगर कि एक मेल आएगा और वो कहेगा मेरे को ये बम्पर्स वगैरह करने, ये चीज़ करने, मे बी he would go a bit overboard बड़े टायर्स और बड़े अलॉयज के साथ. A lady might not go कि मेरे को, वो थोड़ी प्रैक्टिकल साइड पे जाएगी कि मॉडिफिकेशंस हो, टायर्स इतने बल्कि ना हो कि गाड़ी गंदी हो. थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी रहेगा कि टायर ज़्यादा चौड़े हो गए तो गाड़ी ज़्यादा गंदी होगी. बट इन टर्म्स ऑफ मॉडिफिकेशंस शी विल ऑल्सो चूज कि एक बम्पर अच्छा सा लगना चाहिए, कैरियर लगना चाहिए. प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशन शी विल ऑल्सो गेट डन, बट वो सटल होगी बस. बट ये नहीं होएगा. आई हैव येट टू कम अक्रॉस कस्टमर्स की कहेंगे कि मेरे को पिंक चाहिए या ये सर्टन कलर चाहिए. बोथ इन टर्म्स ऑफ हु इज मोर फिनिकी, कोई भी जेंडर का हो सकता है. देयर मेल कस्टमर्स भी जो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे कि मुझे ये चीज़ एकदम अपने हिसाब से चाहिए. लेडी भी हो सकती है, लेकिन आई डोंट सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन दे आर गेटिंग. अच्छा, डिज़ाइन में चेंज हो सकता है. लेट्स से बम्पर के मेरे पास 10 डिज़ाइन है, तो लेडी माइट चूज जो थोड़े से सटल हो डिज़ाइंस. अ मेल माइट चूज थोड़े से और मस्कुलर डिज़ाइन, थोड़े और लाउड डिज़ाइंस. But both will choose bumpers. So do you design thinking that thing is in mind कि ये subtle है तो ये थोड़ा सा ladies side होगा and this is like muscular? We just make sure कि all options should be available. अगर हमारे पास कोई loud accessory है तो subtle भी होनी चाहिए. If the next I am developing, I would make sure कि अभी थोड़े से different हो. ये ना हो ना कि 19-20 का difference ही कर रहा है. It has to be, there is a should be difference कि इसकी अगर audience अलग है, ये कि तो इसकी एकदम अलग ऑडियंस है. समझ गया. So when I am designing, I make sure डिफरेंट होना चाहिए. थोड़ा 2-4 चीजें चेंज करके डिफरेंस नहीं आता. हाँ. Do you copyright your designs that are in the market? We've tried doing it. हमने कॉपीराइट करने का ये लीगल थ्रेट्स भी देने का कोशिश करी है. पेटेंट कराना. Doesn't really work for us. Why it doesn't work is, पहले तो इन्फोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है. बट इन्फोर्स भी चलो आप लीगल थ्रेट्स दे सकते हो, ये कर सकते हो वगैरह. यहाँ पे बड़ा सिंपल था. यू मेक सर्टन चेंजेस इन द प्रोडक्ट एंड यू कॉल इट अ न्यू प्रोडक्ट. ये भी चीज़ है. सो अगर लेट्स से आई हैव डेवलप्ड अ ग्रिल फॉर एन XYZ व्हीकल, वो ग्रिल में अगर वो बंदा 2-4 चेंजेस कर देगा विच आर वेरी इजी टू डू, देन इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट. ये हमारा एक लूप होल है जो लॉट ऑफ पीपल एक्सप्लॉइट. 10 इंच की जगह उसने 9.5 भी कर दिया. अगर सो ये डिजाइनिंग का एक है, ये चीज़ होती है. अनलेस एंड अनटिल देयर इज फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड यूटिलिटी पैटर्न कि ये इसका यूज ही ये है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू इन्फोर्स. हमारे यहाँ तो डिजाइन पैटर्न ही होंगे ना. वी आर नॉट डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर जो इन्वेंशन नहीं करे ना कोई चीज़ की. हम तो बस डिजाइन फॉर द यूटिलिटी पर्पसेस. ठीक है, हम न्यू डिजाइन्स बना रहे हैं. मे बी
बीच बीच में एज अ सेड कि इन्वेंशन हमारे लिए इन्वेंशन है कि डेड पेडल बना दी, हमने कभी बनाया नहीं है, लेकिन डेड पेडल तो उससे पहले भी था ना, बिल्कुल। ठीक है. सो इट्स नॉट कि वी आर इन्वेंटिंग री इन्वेंटिंग द व्हील, बट हम लेग पैडिंग मैंने बना दी कि डिमांड थी, लेकिन लेग आई एम श्योर कोई ना कोई गाड़ी पे तो आती ही होगी ना, वो कुशनिंग वहाँ पे आती ही होगी. आई हैवंट सीन इट ऑनेस्टली. अच्छा ठीक है. एक मैं अभी देख रहा था कि आई वाज सीइंग वन ऑफ द रील्स ऑन योर इंस्टाग्राम आई थिंक. आप लोगों ने थार के पीछे ना वो जो बम्पर है उसके ऊपर मेटल का कुछ लगाने का बना रहे थे. आई वो सॉ टायर दैट. कैरियर यू टॉकिंग अबाउट? नॉट टायर कैरियर, जो पीछे वाली साइड का बम्पर है ना कि कोई हिट करे तो मेटल के कुछ क्लिप्स लगा रहे थे उस पे. जो रियर बम्पर्स में देयर आर टू थिंग्स, आइदर तो बम्पर पूरा चेंज होता है, कुछ लोग गार्ड भी बनाते हैं. वी डोंट मेक गार्ड्स बिकॉज मेरे लिए वो गार्ड्स अभी भी रियर गार्ड इलीगल उसमें आता है, तो आई मेक श्योर कि कोई भी चीज इलीगल में हो तो वो उसको अवॉइड ही पीछे करो. वाले गार्ड्स तो नहीं पीछे वाले भी आई illegal नहीं है. रोकते हैं लोग, पुलिस वाले तंग करते हैं. आई हैव हैड कस्टमर्स जिस पे लोगों ने रोका हुआ है, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा दूर ही भागता हूँ जहाँ पे कि मेरे कस्टमर कोई भी हैरेस हो कोई भी स्टेट पे. तो आई हैवंट मेड अ गार्ड एज पर से फॉर थार. मैंने बम्पर पूरा ऑल टुगेदर बनाया कि रियर बम्पर हट जाए, एक नया बम्पर लग जाए. दैट्स व्हाट आई हैव डन. Then there's another thing, tire carrier. ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन lot of Thar customers they change the tires and alloys. बड़े लगते हैं पीछे वाले, और इसका रियर जो टायर होता है वो उसका पूरा वेट आता है पीछे दरवाजे पे. हाँ बिल्कुल. जैसे वो रियर का वेट आपने 10-20 kg बढ़ा दिया, वो दरवाजा वैसे ही खड़कता है, वो और खड़कने लगेगा, वो आवाज आनी शुरू हो जाती है. सो व्हाट द टायर कैरियर डज इज कि वो पूरा वेट को ले जाता है चेसी पे, तो टायर का पूरा वेट चेसी पे आ जाता है. अच्छा. सो इट ओपन्स विद द रियर डोर ओनली, इट्स कनेक्टेड बट द होल वेट कम्स ऑन द चेसी. Oh, that's interesting. Okay. Now, what do you see the future market trends? Like, कौन सी नई कार आ रही हैं which you are gearing up, क्योंकि ऑटो एक्सपो भी चल ही रहा है. So, are you gearing up for the upcoming cars? See, in my field, अभी तो Roxy है for the next 6 months. ठीक है. We are looking at कि once the vehicles come into the market, there will be a lot of customizations which will happen. इसके बाद I don't know, I see a lot of shift towards EV. 2-3 दिन पहले I drove both the Mahindra की न्यू जो EVs आई हैं, वो 6E BE6, हाँ BE6 and then there was a 9 XE, right? तो ये गाड़ियाँ in terms of fit, finish, the design language, they are at par or maybe exceeding than in any international vehicle. ठीक है, मतलब you will see the same features, same design language in a 1.5 crore vehicle. अच्छा. जो ये 20-30 lakhs की vehicle में ऑफर महिंद्रा कर रही है. इवन टेस्लास की फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है इंटीरियर वगैरह की जितनी अच्छी इन्होंने अपनी इनिशियली कर दी है. सो इफ महिंद्रा कंटिन्यूज दिस, आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन दिस महिंद्रा इलेक्ट्रिक सेगमेंट. बट इलेक्ट्रिक और भी बाकी सारी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक में आ रही है, तो दिस आई वोंट बी शॉक्ड अगर 1-2 साल में शायद महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक भी आ रही हो, विच वी सॉ द कंसेप्ट. हाँ, वी सॉ द कॉन्सेप्ट हमने देखा था. वो 2 साल में 3 साल में महिंद्रा थार की भी इलेक्ट्रिक निकाल दे, तो दैट्स समथिंग विच आई विल बी इंटरेस्टेड इन. हाउ डू इलेक्ट्रिक 4x4s परफॉर्म. I know for a fact कि they've been sold internationally or they have been very successful. Hummer EV, even I think India में भी कुछ आ गई हैं अब. हाँ जी हाँ जी. So Hummer EV has been more or less a success. Then आपकी Ford की range वो 150 की electric, that is very popular US वगैरह में. The other electric companies which are making 4x4 vehicles, सबसे बड़ा example अभी आपका वो Cybertruck 4x4 truck electric. So electric is the future, no doubt about it. It is, I think, in another 5-10 years it will evolve a lot in terms of the batteries or whatever. But 4x4 में भी I am looking for that merge कि 4x4 और electric कहाँ ले जाएंगे. Actually, I was talking to somebody who's too technical into this thing. तो वो कह रहे थे कि अगर EVs जो हैं 4x4 होंगी ना, which will be much more powerful than these motor vehicles, क्योंकि उनको आगे एक मोटर लगानी है और पीछे मोटर लगानी है, that will individually work. So they will be much more powerful than the present vehicles. I'm sure आपने we've all seen that videos ना जहाँ पे स्पोर्ट्स कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस हो रही है. The electric vehicle is performing much better. अच्छा, but coming back to that what you said about Mahindra EV thing, तो जब उसके ऊपर बैठे थे तो obviously being a manufacturer and customizer, क्या-क्या चीज़ें उसमें दिखी जो कस्टमाइज हो सकती हैं? Honestly, everything was made as a package. As a customization person, I can't think interior wise there's much which can be done. Okay. Exterior wise भी आजकल with all these
newer vehicles, they've given so many sensors, वो ADAS से लेके ये वगैरह, तो for my field there's not much which can be done. Maximum क्या हो जाएगा, maybe underbody protection, you protect the battery components like this, for not much scope in these vehicles. But you have to understand जो customization friendly vehicles कौन से होते हैं. Best is you look at trends outside. ये Wrangler is a customization friendly vehicle. Jeep Wrangler. बिल्कुल. Hilux, Isuzu, Jimny, Thar. ये 4x4 customization friendly vehicles हैं. Lots can be done on this. 4x4 में तो आपकी G-Wagon वगैरह भी आती है, Hummer EV भी आती है. उसमें भी कस्टमाइजेशन हो सकती है, लेकिन देयर इज अ लिमिटेशन, क्योंकि अब उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी डाल दी है. सो दे आर नॉट एज रॉ एज दीज व्हीकल्स आर. So technology is a constraint in your business? It definitely is. जितनी ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी में भी सेंसर्स डाल दोगे, जितने ज़्यादा आप सेंसर्स डाल दोगे, उतना ज़्यादा इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर मॉडिफायर्स टू गो अराउंड इट इन टर्म्स कि इफ आई एम मेकिंग आफ्टर मार्केट एक्सेसरी, आई हैव टू मेक श्योर ना सारे सेंसर्स वर्क द वे दे डू. अगर मेरा एक भी सेंसर राइट लेफ्ट हो गया, गाड़ी तो रुक गई ना. बिल्कुल. यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि पीप हो रही है, वो तो दैट्स द लीस्ट ऑफ अ कंसर्न. यहाँ पे सेंसर्स अगर ढंग से नहीं इंप्लीमेंट करे विद माय एक्सेसरीज, तो वो गाड़ी रुक जाती है. गाड़ी रुक जाएगी या फिर वो हिट ऑन जो उसका स्लो होने का है So, या अभी सेल्फ पार्किंग है. रॉक्स के केस में भी they have a ADAS sensor in the top model. We are working on a bumper जो उसके साथ compatible हो. We in fact more or less the testing is done. We are successful, but we can't just launch a bumper in the market. कोई ADAS वाली गाड़ी के साथ लगा ले, कोई प्रॉब्लम हो जाए वगैरह. So that's why the R&D has to be done much in advance. You can't experiment on the customer. So again, technology wise जब हम बात करते हैं, ये sensors और आ जाते हैं, it makes it difficult for people like me कि और आप exterior wise क्या कर सकते हो. Wrangler जैसी गाड़ी में भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन what they have done is they have still kept it modification friendly. जो सो आई एम श्योर ये गाड़ियाँ हमारी और भी, महिंद्रा अगर इलेक्ट्रिक लाएगी तो आई एम श्योर दे विल मेक श्योर कि मॉडिफिकेशन एक सर्टेन लेवल तक हो सके. नॉट एज मच एज जो अभी हो रही है थार में हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह पॉसिबल हमेशा हो. बट जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है, यू फील एक्साइटेड या फिर लगता है कि यार एक गाड़ी अब और रिव्यू करनी पड़ेगी, इसकी अब नई एक रेंज, नई एक आई फील एक्साइटेड बिकॉज गैप हो जाता है ना. अभी लास्ट अगर कुछ साल में बोलूँ, आई हैड टू गेट द हाईलेक्स पे कुछ टाइम काम किया अच्छा खासा, उसका काफ़ी कुछ बना लिया. देन जिमनी आई, जिमनी में आई वॉज वेरी एक्साइटेड. अब रॉक्स आ रही है, तो रॉक्स के लिए भी ऐसी आई एम एक्साइटेड. तो बीच बीच में गैप आ जाता है. इट्स नॉट लाइक कि हर 6 महीने एक गाड़ी न्यू लॉन्च हो रही है. लास्ट जो थार आई थी, जो 2020 में आई थी, उस बात को ही 5 साल हो गए हैं. तो हमारे सेगमेंट में व्हीकल्स दे कम फार इन बिटवीन, मतलब एकदम साथ साथ नहीं आती ना. तो यू आर ऑलवेज एक्साइटेड कि व्हाट्स न्यू कमिंग टू द मार्केट, किस पे अब डेवलप करने को मिलेगा, क्या नई चीज़ें बना सकते हैं. मेक सेंस. सो दिस वाज the podcast. We wanted to take out the maximum information out from you. All right. I hope you succeeded. No, we have succeeded. But is there anything specific that you want to talk to the people in general, or if you can say that why a customer should come to you, not the other person? No. I won't say. I won't belittle my competition or anyone. I'm just saying that the industry, 4x4 industry or the customization industry, it's growing. It's what I've seen is it's evolving, it's developing. We used to look forward to the कि थाईलैंड में क्या बनने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या बनने जा रहा है, एटलीस्ट इन आवर इंडस्ट्री, या यूएस में क्या बनने जा रहा है. आई थिंक इन अदर 5 years वी विल रीच दोज लेवल्स. अच्छा. रीच दोज लेवल्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग. मैं 5 years बोल रहा हूँ मैक्सिमम. हम थाईलैंड को तो ओवरटेक कर लेंगे R&D वाइज. एंड the overall aftermarket customization industry और इंडिया में develop हो रही है. So the next decade is going to be very interesting. मार्केट में कंपटीशन भी आएगा, बट कंपटीशन ब्रिंग्स इन इनोवेशन. नई इनोवेशंस भी आएंगी, एंड होपफुली हमारे लॉज भी उस हिसाब से चेंज हुए, which facilitate people like me or anyone in the industry के they grow because कोई भी developed country में, again सबसे बड़े example मैं बार बार लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, थाईलैंड तक आप ले लो. यहाँ पे laws have been made ये customization के लिए कि both the manufacturer and the consumer both are happy. True. So they have to be very clear. I'm not saying कि absurd level पे modifications भी होनी चाहिए,
कि दे शुड बी अलाउड कि बहुत एक्स्ट्रा बड़े टायर्स लगा लिए या ये कर लिया गया, लेकिन देयर शुड बी लिमिटेशंस, एक कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं. शौक को भी थोड़ी सी जगह हाँ, दे शौक को जगह देनी चाहिए. दिस इट्स अ बिग इंडस्ट्री, इट्स बट इट कैन बी मच बिगर. Okay. So that's it from my side. Thanks for coming on the show Thank you for having and me. love talking to you. Same है. Thank you. Thank you.